This video covers the different ways to implement Action Listener including inner classes. This video is based on the last video. You can click I button on top right to watch the last video. In next video you will learn how to make a simple calculator app having multiple buttons, text fields, labels and action listeners. So this was the application we developed in our last video. Let us run this application again to see what was the result. So this was the output of this application. This is basically a JFrame, and this JFrame, there is a button as a component on this JFrame window. When I click this button, then this is the output. In fact, this is a JOption pane dot show message log being executed. After clicking this OK button, in fact this code will be executed और ये आपकी current application को close कर लेते हैं. Let me recall important things. This is the name of our class. This class is basically inheriting JFrame class. It means this class is itself a JFrame class. And all the features provided in JFrame class can be used within this class. In this class, you are going to implement an interface called Action Listener. Action Listener एक interface है which is defined in java.awt package. So you need to import java.awt package as well to implement this Action Listener. जब भी आप किसी भी क्लास में इस Action Listener को implement करते हैं, then you need to define this method as well. If this method is not defined, then you must define this class as abstract. This is the body of this method, and we have attached this Action Listener with button 1. This is called to register Action Listener. In fact, we have registered this current Action Listener with button 1. In simple words, when this button 1 is clicked, then the action performed method defined in this current class will be executed. ये हम लास्ट टाइम कर चुके थे, लेकिन इस करंट एप्लीकेशन में एक छोटा सा इशू है, और वो ये है कि on the same JFrame you can add multiple components and different components may have different events. So currently हमारे पास यहाँ पे एक ही component है और हमारे पास यहाँ पे एक ही event है, that is click. तो अगर मैं इस तरह जो आपको करंट एप्लीकेशन नजर आ रही है ये भी ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो मैं इस क्लिक इवेंट के लिए अलग एक्शन लिस्नर डिफाइन कर सकता हूँ. वो कैसे डिफाइन करेंगे? इनफैक्ट फॉर एवरी एक्शन लिस्नर यू नीड टू डिफाइन अ सेपरेट क्लास. तो लेट मी डिफाइन अनदर क्लास जो कि इनफैक्ट एक्शन को लिसन करेगा फॉर दिस बटन 1 क्लिक इवेंट. तो हमें यहाँ पे एक और क्लास को ऐड करना पड़ेगा. लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास को ऐड करता हूँ. यू नीड टू डिफाइन नेम ऑफ दिस क्लास. इस क्लास को जो मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ, ये बेसिकली बटन 1 के अगेंस्ट हम डिफाइन करना चाह रहे हैं कि बटन 1 को जब क्लिक किया जाएगा तो भी हम जो कोड लिखने वाले हैं ये वाला कोड आपका एग्जीक्यूट होगा एट रन टाइम. चूंकि मैं बटन 1 के अगेंस्ट एक्शन लिस्नर डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो इसका नाम भी हमारे पास कुछ ऐसे ही होना चाहिए. Suppose the name of this class is button 1 action. This could be any name. क्योंकि हम इसको button 1 के लिए डिफाइन करना चाह रहे हैं, तो it should have a meaningful name. So in this case, this is, let's say, button 1 action listener. तो ये हमारे पास button 1 action listener की क्लास डिफाइन हो गई है. Now the question is, जावा को ये इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी कि ये एक्शन लिसनर ही है? ऑफ कोर्स जस्ट टू मेंशन एक्शन लिसनर इन द नेम ऑफ क्लास इज नॉट एनफ. यू नीड टू ऐड सम मोर इंफॉर्मेशन दैट दिस इज बेसिकली एन एक्शन लिसनर क्लास. तो ऐसा करने के लिए हमारे पास ये एक इंटरफेस है जिसको हमने यूज किया था लास्ट टाइम. अगर आप किसी भी क्लास में इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं तो इनफैक्ट आप जावा को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप किसी एक्शन लिसनर को ही डिफाइन करना चाह रहे हैं. तो अगर मैं इस एक्शन लिसनर को इस क्लास में इंप्लीमेंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन इशू ये कि ये जो एक्शन लिसनर इंटरफेस है ये java.awt में डिफाइंड है. तो हमें
इन चीज़ों को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा टू डिफाइन और ओन एक्शन लिसनर। लेट्स से इसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक्शन लिसनर का इंटरफेस आ चुका हुआ है, आपने इंपोर्ट कर दिया। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। जैसे मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया तो फौरन यू कैन सी दिस इज नाउ अंडरलाइन विद रेड कलर। और ये आपको नजर आ रहा होगा कि जिसमें कह रहे हैं कि दिस मस्ट बी एब्स्ट्रैक्ट और यू नीड टू डिफाइन एक्शन परफॉर्म मेथड। क्योंकि इस इंटरफेस में जिसका नाम एक्शन लिसनर है, इसमें ये कहा गया कि यू नीड टू इम्प्लीमेंट एक्शन परफॉर्म मेथड। हम ऑलरेडी इस एक्शन परफॉर्म को यहाँ पे डिफाइन कर चुके हुए, तो मैं इसी कोड को यहाँ से कट करके पेस्ट कर लेता हूँ इस नई क्लास में। और जैसे मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा तो आपने देखा कि वो जो अंडरलाइन था ये क्लास, वो जो वार्निंग या एरर था वो खत्म हो चुका है। नो, दिस इज अ कंप्लीट क्लास। यहाँ पे एक एरर दे रहे हैं ड्यू टू दिस कीवर्ड, जो हमारे पास इस करंट क्लास का कोई लास्ट टाइम हमने यहाँ पे इस क्लास को इनहेरिट किया था फ्रॉम जे फ्रेम। तो वहाँ पे हमारे पास जो जी ऑप्शन पेन का हमने यूज़ किया था, वहाँ पे आप दिस का कीवर्ड लगा सकते थे। क्योंकि करंट हमारे पास इस करंट क्लास में कोई जे फ्रेम नहीं है, तो ये आपको दिस पे एरर देगा। तो यू कैन रिप्लेस दिस विद नल। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था नल को। अगर आप जे ऑप्शन पेन के शो मैसेज डायलॉग में नल यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपके जो कंप्यूटर की स्क्रीन होगी उसके मिड में जो मैसेज आपने यहाँ पे लिखा होगा ये डिस्प्ले कर देगा। तो इनफैक्ट आपने ये एक एक्शन लिसनर डिफाइन कर दिया हुआ है, जिसमें इस इंटरफेस को आपने इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ है। और इस इंटरफेस की जो रिक्वायरमेंट थी कि देयर मस्ट बी एक्शन परफॉर्म मेथड, वो भी आपने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो जितने मर्जी आप एक्शन लिसनर्स को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वहाँ पे 2 बटन हैं, तो बटन 1 के लिए आप एक डिफाइन कर लें एक्शन लिसनर, बटन 2 के लिए आप दूसरा डिफाइन कर लें। अगर हमारे पास बटन्स के अलावा कोई और भी वहाँ पे कंपोनेंट्स हैं, so for every component and for every event you can define different action listeners like this. तो लेट्स से ये डिफाइन करने के बाद हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन देनी है कि इस बटन 1 को क्लिक करने के बाद वो कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए जो कि हमने डिफाइन किया हुआ है इस वाले एक्शन लिसनर में। तो इसको इंफॉर्मेशन कैसे देंगे कि अब ये वाला एक्शन लिसनर या ये वाला हमारे पास जो एक्शन परफॉर्म मेथड है ये एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैं दोबारा जाना पड़ेगा माई GUI एग्जाम्पल क्लास में। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक एरर आ रहा है जो कि आपसे ये कह रहे हैं कि वेयर इज एक्शन परफॉर्म मेथड, जो कि आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है इस एक्शन लिसनर के इंटरफेस को, जिसकी वजह से ये एरर आ रहा है। यहाँ से इसको हटा दें। अब आपने यहाँ पे इस क्लास में इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जब नहीं किया तो वो एरर भी आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा। नाउ दिस इज बटन 1 जो आपने यहाँ पे डिफाइन किया था, जे ऑप्शन पेन का ये ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे आपने इसको नॉर्मली कहते हैं कि रजिस्टर करना। आपने इस बटन 1 के साथ जो एक्शन लिसनर रजिस्टर किया था वो इसी ही क्लास में डिफाइन था। ये लास्ट हमने ये कोड लिखा था, क्योंकि अब हमने जो एक्शन लिसनर था वो उठा के यहाँ डिफाइन कर दिया किसी और क्लास में। तो इस क्लास का आपको रेफरेंस देना पड़ेगा यहाँ पे जब आप इस बटन 1 के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं एक्शन लिसनर को। तो यहाँ पे दिस को हटा के आप उस क्लास को लिखेंगे कि जो कि आपने खुद डिफाइन की है टू हैंडल दिस बटन 1 क्लिक इवेंट। नाउ लेट मी रिपीट अगेन। इस कोड का मतलब ये हुआ कि आपने बटन 1 के साथ रजिस्टर किया हुआ है इस एक्शन लिसनर को। या दूसरे वर्ड्स में, जब बटन 1 को हम रन टाइम पे क्लिक कर लेंगे तो इस क्लास में आपने जो एक्शन परफॉर्म का मेथड लिखा होगा ये कोड आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये हमारे पास जो कोड होगा, दिस कुड बी अ सिंगल लाइन, दिस कुड बी अगेन अ वेरी कॉम्प्लेक्स कोड। तो हमने यहाँ पे जो कुछ भी लिखा होगा ये इनफैक्ट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा जब भी आप रन टाइम पे बटन 1 को क्लिक करेंगे। सो लेट मी चेक अगर आप इसको रन करते हैं व्हाट इज हैपनिंग। ये हमारे पास जे फ्रेम आ चुका है। इफ यू क्लिक ऑन दिस बटन 1, तो बटन 1 को क्लिक करने के बाद जो हमने अभी एक्शन लिसनर डिफाइन किया था वो इनफैक्ट यहाँ पे कॉल हो रहा है, और उसके अंदर जो एक्शन परफॉर्म मेथड है वो आपका यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया, उसका आउटपुट नजर आ रहा है। सो इनफैक्ट द मेन पॉइंट वाज इन दिस वीडियो कि अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी के एक्शन लिसनर को डिफाइन कर सकते हैं, एंड फॉर एवरी कंपोनेंट एंड फॉर एवरी इवेंट यू कैन डिफाइन डिफरेंट एक्शन लिसनर्स।
Now this is another approach. You can also define listeners as inner classes. First of all, what is an inner class? As you can see from the name, a class defined within a class is called inner class. So in Java, you can define inner classes as well. Usually when you define inner classes, they are normally declared as private. And you can use these inner classes to listen different kind of events and perform different kind of processing. In last video, we saw that how you can define different classes to listen different kind of actions. We can perform the same thing in form of inner classes as well. So if I can see the code, in this code, we define this class as an action listener, और इस क्लास में हमने ये मेथड डिफाइन किया और इस मेथड को हम एग्जीक्यूट कराते हैं जब रन टाइम पे आपका यूज़र बटन 1 को क्लिक करता है एंड इन दिस लाइन इन फैक्ट यू रजिस्टर्ड दिस क्लास एज एक्शन लिसनर अगेंस्ट दिस बटन 1. अब क्वेश्चन ये कि क्या हमारे पास ये जो हमने एक एक्स्ट्रा क्लास डिफाइन की है, क्या हम इस क्लास को एज अ इनर क्लास डिफाइन कर सकते हैं? इसका काम यही होगा कि ये हम जब बटन 1 को क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म मेथड है जो कि हमने डिफाइन किया है विद इन दिस क्लास, तो ये एक्शन परफॉर्म मेथड एग्जीक्यूट होगा अगेंस्ट बटन 1 क्लिक इवेंट. तो अगर आप चाहें तो आप इस क्लास को एज अ इनर क्लास डिफाइन कर सकते हैं. लेट्स से मैंने यहाँ पे इसको कॉपी किया. दिस इज आवर मेन क्लास. Again, let me show you the name. The name of the class is MyGUI example. In this MyGUI example, जो कि यहाँ पर ख़त्म हो रही है, तो इसी ही की बॉडी में मैं इस क्लास को मैंने पेस्ट किया. इट शुड बी प्राइवेट. नॉर्मली हम जब इनर क्लासेस डिफाइन कर रहे होते हैं तो ये प्राइवेट होती हैं. और यू कैन डिफाइन पब्लिक क्लासेस एज वेल, लेकिन नॉर्मली हम जो प्राइवेट क्लास डिफाइन करते हैं तो ये यूजुअली प्राइवेट होती हैं. दिस इज़ द नेम ऑफ योर क्लास. अगर आप सेम नेम रखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन जस्ट टू मेक इट क्लियर इसका नाम मैं यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ. लेट्स से द नेम इज नाउ बटन 1 एक्शन लिसनर इनर क्लास. Now this class is implementing action listener, which means that in this class you need to define action perform method. So let's say हम action perform method को change नहीं करते, we can keep it same. But now this is now the inner class defined in the main class. Now we need to register this inner class as action listener against button 1. So in this code where button 1 is defined, इस button 1 के against हम एज एक्शन लिस्नर रजिस्टर करते हैं अपने इनर क्लास को यहाँ पे. तो ये हमने इसका नाम मेंशन कर दिया. नो दिस कोड मीन्स एट रन टाइम व्हेन बटन 1 इज क्लिक्ड देन दिस क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड, और इस क्लास के अंदर हमारे पास ये जो एक्शन परफॉर्म का मेथड है ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा जब रन टाइम पे आपका यूजर बटन 1 को क्लिक करता है. अगर इसको हम यहाँ पे चेक कर सकें कि क्या ये कोड काम कर रहा है कि नहीं, तो लेट मी चेक. ये इसको हम क्लिक करते हैं बटन 1 को, तो ये डिस्प्ले हो गया आई एम बटन 1, और इसको ओके करने से अगेन ये सिस्टम को क्लोज करें. नाउ लेट मी मेक सम चेंजेस ताकि हमें आइडिया हो सके कि ये कोड कौन सा वाला एग्जीक्यूट हो रहा है. लेट से मैंने यहाँ कुछ चेंजेस की. इन दिस इनर क्लास के अंदर जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म मेथड है वहाँ पे जी ऑप्शन पेन का जो शो मैसेज लॉग था मैंने वहाँ पे टेक्स्ट थोड़ा सा चेंज किया जस्ट टू चेक दैट वेदर दिस इनर क्लास इज वर्किंग और नॉट. तो अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ तो लेट मी सी व्हाट इज द आउटपुट. आई एम बटन 1 इन इनर क्लास. इट मीन्स कि हमने जो कोड अभी डिफाइन किया ये एक्चुअली उसी ही कोड को एग्जीक्यूट कर रहा है. ना द क्वेश्चन इन दिस केस बेसिकली दिस क्लास इज नॉट रिक्वायर्ड. डिफाइन करना चाहें सेपरेट तो भी ठीक है. अगर आप इसको एज सेपरेट डिफाइन नहीं किया तो मेन क्लास में आप एज अ इनर क्लास भी डिफाइन कर सकते हैं. नाउ द पॉइंट इज जो कि समझने वाला है वो ये है, इफ इन द सेम एप्लीकेशन you need to handle different kind of events or you need to listen different kind of events, for every event you can define different inner classes.
फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास बटन 1 है और सपोज बटन 2 है एंड बटन 3 है, मैं बटन 1 को क्लिक करके कुछ करना चाह रहा हूँ, बटन 2 को क्लिक करने के बाद मैं कुछ और करना चाहूँगा पोस्ट, एंड बटन 3 को क्लिक करने के बाद मैं कुछ और करना चाहूँगा. So for this purpose you can define 3 different classes, one for button 1 and another for button 2 and again one for button 3. तो ये तीन आप इनर क्लासेस डिफाइन करके फिर आप डिफरेंट बटन्स के साथ आप डिफरेंट इनर क्लासेस को रजिस्टर या अटैच कर सकते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया था. तो अब यहाँ पे बटन 1 के अगेंस्ट जैसे कि हमने इस क्लास को रजिस्टर किया, बटन 2 के अगेंस्ट आप दूसरी क्लास को रजिस्टर करेंगे एंड बटन 3 के अगेंस्ट आप तीसरी क्लास को रजिस्टर करेंगे. तो इस तरीके से आप डिफरेंट इनर क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं फॉर डिफरेंट इवेंट्स एंड फॉर डिफरेंट कंपोनेंट्स. तो आपने जिस कंपोनेंट के अगेंस्ट जिस इनर क्लास को आपने रजिस्टर किया होगा, तो उस इनर क्लास के अंदर जो एक्शन परफॉर्म मेथड होगा वो आपका एग्जीक्यूट होगा एट रन टाइम. एंड अगेन कीप इन माइंड दिस इनर क्लास इज इम्प्लीमेंटिंग दिस इंटरफेस. अगर आप इसमें इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो स्टिल कोड विल बी कंपाइल्ड, लेकिन इनफैक्ट ये हमारे पास जो क्लास बनेगी ये एक्शन लिसनर नहीं है, ये एक सिंपल क्लास होगी जिसके आप सिंपल ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे जो आपने ये मेथड डिफाइन किया होगा ये बेसिकली एक्शन लिसन नहीं करेगा, ये रन टाइम पे आपको एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हो सकता. टू मेक इट एक्शन लिसनर यू नीड टू इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर मेथड इंटरफेस एज वेल. अगर आपने ये इंटरफेस इम्प्लीमेंट नहीं किया होगा तो उस केस में ये क्लास हमारे इस काम के लिए नहीं है जो कि हम यहाँ पे काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं. तो मेजॉरिटी हमने 3 तरीके पढ़े एक्शन लिस्टनर को डिफाइन करने के. अब जो मेजॉरिटी लोग हैं वो इनफैक्ट एक्शन लिस्टनर्स को इस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं. तो आई विल सजेस्ट कि अगर आप GUI एप्लीकेशंस बनाते हैं बाय यूजिंग JFrame एंड यूजिंग द स्विंग पैकेज, तो जो अभी हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जब एक्शन लिस्टनर्स को यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स को हैंडल करने के लिए डिफरेंट इनर क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, और इन इनर क्लासेस को फिर आप डिफरेंट इवेंट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट इवेंट्स के साथ आप अटैच कर सकते हैं.